Good morning, dear students. Myself is Sumit. Today we'll be doing the second chapter, biological classification. In today's lecture, we'll be talking about the kingdom Protista. This one is the second kingdom of 5 kingdom system of classification given by R.H. Whittaker. These are some of the common characters of kingdom Protista. Kingdom Protista include all the individuals which are eukaryotic and usually single-celled. So, single-celled eukaryotes are placed under Protista, but the boundaries of this kingdom are not well defined. Because of their eukaryotic nature of the cell, the genetic material is usually DNA, which is usually contained within the chromosome in a distinct nucleus. The nucleus is true nucleus having a proper nuclear membrane. On the basis of the mode of nutrition, the Protista may be autotrophic, which can make their food own. They may be photosynthetic or chemosynthetic, or heterotrophic. Heterotrophic, which cannot make their food own and depends on other organisms for their food. They may be parasitic or saprophytic. Parasitic take their food from the living host, while saprophytic from the dead organic material. Most protists live in water. They are usually aquatic, but some subsist in moist places like wet soil. So mostly they are aquatic in nature, but some terrestrial forms are also there. But they are always water loving, so present in moist places. Some of the forms, they forms a link with plants, as we know that there is no specific boundaries, so they form a link with plants, animals and fungi also. Because of their eukaryotic nature, they contains a well-defined nucleus and other membrane-bound cell organelles like mitochondria, etc. In this book, we include chrysophytes, which is usually algae, dinoflagellates, which is usually known as photosynthetic marine animals, dinoflagellates, euglenoids, which include euglena, slime molds. Molds means animals, and protozoans under kingdom Protista. So let me first start with chrysophytes. On the basis of the pigment present within the cell wall, within the cell, the chrysophytes are usually known as golden brown algae or golden algae. These are commonly known as diatoms और डेस्मिड्स. अगर आप क्राइसोफाइट्स की बात करेंगे तो इन्हें डेस्मिड्स और डाईएटम्स भी कहते हैं. वाई दे आर कॉल्ड डाईएटम्स? बिकॉज ऑफ देयर वॉल स्ट्रक्चर. जब आप क्राइसोफाइट्स में हैं तो ये सिंगल सेल्स, इनकी वॉल के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यू कैन सी अ स्ट्रक्चर लाइक दिस. तो ऐसा लगेगा कि जैसे जो पेट्री प्लेट्स हैं ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर कवर हैं और ये आपको ऐसा लगेगा कि दो अलग अलग एटम हैं. ये दो अलग अलग एटम्स आपको दिख रहे हैं. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड डाई मीन्स टू एटम्स. बट बेसिकली दीज आर नॉट टू एटम्स. ये एक सिंगल सेल है. दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स.
क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया, क्योंकि जो प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी आएंगे वो सिंगल सेल्ड होंगे और यूकैरियोट्स होंगे. So it appears like this, so they are known as diatoms. They are found usually in fresh water as in marine water. दोनों ही waters में आपको ये मिल जाएंगे, fresh water में भी मिलेंगे और marine water में भी मिलेंगे. माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, अगर आप इनका सेल का स्ट्रक्चर, वैसे भी यूनिसेलुलर है तो माइक्रोस्कोपिक ही होंगे. सो माइक्रोस्कोप से ही आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं प्रॉपर. एंड फ्लोट इन वाटर, तो ये वाटर में तैरने वाले होते हैं, पानी की वाटर करंट में तैरते हैं. सो दे आर समटाइम्स ऑल्सो नोन एज फाइटोप्लैंक्टन्स. इनको हम, क्योंकि ये वाटर करंट में तैरते हैं, तो इनको हम प्लैंक्टन्स या फाइटोप्लैंक्टन्स भी कह सकते हैं. प्लैंक्टोनिक इन नेचर है, तो इनको हम चाहें तो प्लैंक्टन्स भी कह सकते हैं. यूजुअली दे आर ऑटोट्रॉपिक एंड फोटोसिंथेटिक इन नेचर. ऑटोट्रॉपिक तो आप जानते ही हैं, विच कैन मेक देयर फूड ओन. एंड दे आर यूजुअली फोटोसिंथेटिक. It means they can use the sunlight as the energy source. The main character of chrysophytes is their cell wall, which is of which is usually look like made up of two atoms. And as we know that the cell wall is of plant is usually made up of cellulose, so the cell walls of chrysophytes are also made up of cellulose, but some amount of silica is also there. This one is very very important character of chrysophytes. And due to the deposition of silica, बिकॉज सेल वॉल में सिलिका का डिपोजिशन हो जाता है, और सिलिका एक ऐसा केमिकल है जो इसकी वॉल को सिलिसिफाइड करता है. और सिलिसिफाइड वॉल जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू या फंगस के थ्रू खत्म नहीं हो पाती है. सो ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिलिका दे आर इनडिस्ट्रक्टिबल. आप इनको डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, डैमेज नहीं कर सकते हैं. So diatoms have left behind large amount of cell wall deposits. This accumulation over billions of years referred to as diatomous earth. ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है. क्या मतलब है, देखिए, क्योंकि ये सिलिसिफाइड वॉल है, सिलिका का डिपोजिशन है, तो ये सिलिका का डिपोजिशन की वजह से इसकी वॉल को कोई भी डिकम्पोज नहीं कर पाता. बहुत लंबा टाइम लगता है डिकम्पोजिशन में, या नहीं हो पाता है. और आपको ये मालूम है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ में है उसकी कभी ना कभी डेथ होगी. तो जब भी ये डायटम्स की डेथ होती है तो डेथ होने के बाद इनका डिकम्पोजिशन नहीं होता, डेड बॉडी जैसी थी वैसी ही रह जाती है. और बिलियंस ऑफ ईयर से ऐसा होते आ रहा है, और ऐसा होते होते ये एक्यूमुलेट होती चली गई ओशियंस में, और ओशियंस में इन्होंने एक चट्टान बना दी, जिसको एक नई अर्थ या डाई एटम से बनी हुई अर्थ या डाई एटमेशियस अर्थ का नाम देते हैं. और इस डाई एटमेशियस अर्थ का आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कई सारी चीज़ें बनाने में इसका यूज़ होता है. जैसे इस डाई एटमेशियस अर्थ का यूज़ जो होता है वो डायनामाइट बनाने का में होता है, जो कि एक एक्सप्लोरर है, बॉम्ब बनाने में जिसका यूज़ होता है. इसके अलावा इसे हम सीमेंट पे मिला देते हैं ताकि टू इन्हांस द सीमेंटिक पावर. इट कैन ऑल्सो यूज इन लिपस्टिक्स, इन मैनी अदर सब्सटेंसेस लाइक द शू पॉलिश, और जो ये पेंट्स जो होते हैं इनमें भी इसको यूज़ किया जाता है. पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, जो ऑयल फिल्टर्स बनते हैं उसमें, कई तरीके की सिरप्स में इसका यूज़ किया जाता है. अमेरिका इस डायटम्स का सबसे बड़ा जो है वो प्रोड्यूसर है. किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो दूसरी चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो है डिनोफ्लैजिलेट्स. दे आर अगेन unicellular हैं. They are again unicellular in nature, eukaryotic in nature, having a
proper nuclear membrane and cell organelles. They are mostly marine. They are present in the marine water, and usually they are photosynthetic in nature. So photosynthetic nature means they can again use the solar energy for their source of energy. These are usually appear yellow, green, brown, blue और रेड. देखो बहुत तरीके के कलर इसमें दिख जाते हैं आपको. येलो कलर के भी दिखेंगे, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स. जैसा पिगमेंट होगा, बिकॉज द कलर इज यूजुअली डिपेंडेंट ऑन द पिगमेंट प्रेजेंट. So there are so many types of pigments like carotenes and xanthophylls, जिसकी वजह से कैरोटीन्स अगर होंगे तो कलर जो है वो रेडिश आएगा. जेंथोफिल आएगा तो वो येलो या ब्राउन तरीके का कलर आएगा, अपीयर होगा. मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला. जब भी आप इनको देखेंगे डिनोफ्लैजिलेट्स को, इसमें आपको दो फ्लैजिला मिलेंगे. एक फ्लैजिला जो होगा ये इंटीरियर फ्लैजिला होगा और एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला होगा. इस तरीके से इसमें आपको दो फ्लैजिला जो है वो अपीयर हुए दिखेंगे. एक और इंटरेस्टिंग फीचर है इसमें कि जो रेड डिनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन जो है इनका बाइनरी फिजन के थ्रू मल्टीप्लिकेशन इज़ वेरी वेरी फास्ट. और जब ये मल्टीप्लिकेशन बहुत ही रैपिड होता है, बहुत तेज़ होता है, दैट दे मेक द सी अपीयर रेड. तो आपको जो ओशन है, जो समुद्र है, वो भी रेड कलर का दिखने लग जाएगा. सो इसी को हम बोलते हैं रेड टाइड्स, है ना. तो एक रेड सी जो है उसमें भी बहुत लार्ज अमाउंट में डिनोफ्लैजिलेट्स हैं. इसकी वजह से उसका कलर जो है वो रेड अपीयर होता है. सम ऑफ द डिनोफ्लैजिलेट्स कैन ऑल्सो प्रोड्यूस सम dangerous toxin which can kill other marine animals such as fishes. तो डिनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं कुछ बहुत डेंजरस टॉक्सिन्स, जहर को भी रिलीज़ करते हैं. और जब ये जहर को रिलीज़ करते हैं तो ये जहर बाकी सारे जो एनिमल्स होती हैं, स्मॉल फिशेस होती हैं या ओशियन में, मरीन वाटर में, क्योंकि ये मरीन है, ओशियंस में ही पाए जाते हैं. तो बहुत तरीके के टॉक्सिक जो ये केमिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो बहुत तरीके की जो बायोडाइवर्सिटी है ओशियन की, उसको हार्म करते हैं. और जो फिशेस और अदर जो स्नेल्स एक्सेट्रा जो सी एनिमल्स होते हैं, उन्हें ख़त्म कर देते हैं, किल कर देते हैं. तो आज हमने इस टॉपिक में फाइलम किंगडम प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट्स और डिनोफ्लैजिलेट्स के बारे में पढ़ा. नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स की. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर अगले टॉपिक की बात करेंगे. थैंक यू सो मच.